everyone. This is the fourth chapter of coordination, its importance and its nature. So this is the last topic that we will discuss. That is, coordination is needed at all levels of management, and also we will discuss about its importance of coordination. So before explaining this, I would like to do a quick revision. So what is coordination? Coordination is a process through which harmony is established among different activities of an organization so that organization objectives can be successfully achieved. Coordination क्या होता है? Coordination होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन में हारमोनी क्रिएट होता है. हारमोनी मीन्स टुगेदरनेस, कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को टू गेट द वर्क डन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, और जो ग्रुप गोल होते हैं इट कैन बी इजीली अचीव्ड. ये होता है कोऑर्डिनेशन का मीनिंग. इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट इट. Also in levels of management, we discuss about the levels of management. So in this chapter we will read about how coordinations is important or it's needed for all levels of management. You can see there are top level, middle level, lower level and platform level. In this picture, in this diagram, you can see there are three things. So in top level is for the CEO, Chief Executive Officer. Middle is for the departmental head. Fourth is for the supervisor, and third is for the supervisor. Fourth is for the workers or labor. तो ये हो गया levels of management. Now from here to here it is known as managerial level, and from this is known as platform area, is known as non-managerial level. So जो coordination, it's important for all the levels of the organization. Suppose there should be a good coordination between sales, purchase and productions department. तो इसमें क्या होता है, जैसा coordination, ठीक है, ये तीन levels है जिसमें CEO जो top होते हैं, जो managers levels के होते हैं, वो top level में रहते हैं, middle में and lower में. तो coordination जो है, so it can be seen that this is not concerned with a particular managerial level. इसका मतलब होता है कि जो coordination, it's not for only top level or middle level or lower level. It's for all levels of management, and it's needed. It's work accordingly. So इसमें क्या होता है, जो each and every person of an organization, no matter it's from top level, middle level, lower level or platform level, should perform their performance individually. Should put their individual efforts to make the वर्क डन. तो ऐसा नहीं होता है कि जो इंडिविजुअल है सिर्फ उसको अपना इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाना है टू बिकम द बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें क्या होता है, जितने भी परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, दे कोऑपरेट ईच अदर. जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो Suppose these are the departments of an organization. तो जो sales department है, it's need to cooperate production department. The production department also have to cooperate. Purchase department also need to cooperate the production department. Sales को भी production को help करना पड़ता है, production को भी purchase और sales को help करना पड़ता है, कि अगर सबका काम साथ में होगा, equally होगा, तो ही the desired result can be possible. So इससे क्या होता है, इससे क्रिएट होता है ग्रुप एक्टिविटी. So coordination is required at each level of management, individually and also by all of them collectively as a group. तो क्या है, जो coordination है ये इंडिविजुअली ज़रूरत है, क्योंकि the CEO of the company should cooperate the middle level, the departmental head and the supervisors as well as the workers. जब तक टॉप लेवल, मिडिल लेवल को कॉपरेट नहीं करेंगे तब तक जो बाकी के जो लेवल्स है वो उनका काम सही से नहीं होगा. सिमिलरली इफ़ द सेल्स, परचेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल नॉट कॉपरेट ईच अदर, तो जो काम है वो काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा. तो इसमें कहा जाता है कि जितने भी जो इंडिविजुअली सबको कॉपरेट करना है एज वेल एज ग्रुप एक्टिविटी के साथ भी उसको एफर्ट्स लगाना है, तो ही जो कोऑर्डिनेशन बना के
जो ग्रुप गोल है वही अचीव हो पाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक लेवल्स में काम करता है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो या प्लेटफॉर्म हो. हर डिपार्टमेंट में काम करता है, इंडिविजुअली और ग्रुप के साथ भी. So this is coordination is needed for all level of management. Now we will read about its importance. Okay, so this is the first topic, that is size of the organization. तो size importance है ये coordination का. तो size, जो organization में जो size होता है वो कैसे डिपेंड वो कैसे वर्क करता है, important कैसे है वो coordination के लिए. So we need to understand this nicely. अब देखो, अगर ज़्यादा पीपल होंगे कोऑर्डिनेशन में तो वो बढ़ते जाएंगे. सो आजकल क्या होता है, डे बाय डे जो बिजनेस है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, वो बड़े होते जा रहे हैं, और जो स्केल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो भी बड़े होते जा रहे हैं. एंड एनी इंक्रीज ऑफ द सेल्स ऑफ द बिजनेस ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. तो क्या होता है, सपोज वहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन ए. नाउ दे डिसाइड दैट दे विल इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. सो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कि वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे और उससे क्या होगा, सेल्स ज़्यादा होगा. तो व्हेन वी विल इंक्रीज द सेल्स एंड प्रोडक्शन, सो वी नीड व्हाट, वी नीड मोर एम्प्लॉयज़. ओके, ये काम करेगा कौन, वर्कर्स विल डू द वर्क. मैनेजर आके तो नहीं करेंगे, वर्कर्स ही करेंगे. अब जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उतना ज़्यादा वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. सो अब क्या होता है, एज अ इंडिविजुअल पीपल्स और आर नॉट इक्वल. सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं, अलग अलग टॉलरेंस पावर होते हैं. इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट ऑल्सो रिजल्ट इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ ईच पर्सन हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट. जितने भी वहाँ पे पीपल्स नए जो होंगे उनका इंटरेस्ट क्या होगा, सेम नहीं होगा. मे समवन इज इंटरेस्टेड इन सेल्स, मे समवन इज इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन. ओके, सबके इंटरेस्ट, ये जस्ट एग्जांपल था, तो सबका इंटरेस्ट सेम नहीं होगा, सबका वर्किंग कैपेबिलिटी नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, वर्किंग कैपेसिटी कम होगा, वे ऑफ वर्किंग विल बी डिफरेंट. किसी का काम करने का तरीका भी अलग हो सकता है, एंड टॉलरेंस एक्सेट्रा. हाउएवर ऑल दिस पीपल हैव टू वर्क टुगेदर, और एंड no matter whatever issue they have to work together. Okay, together they have to work together. So it's not easy कि आप कहीं पे रह रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, spending your 9 hours in an organization and you are working with a toxic people. So जो ये एडजस्टमेंट होता है, ये जो म्यूचुअल ग्रुप एक्टिविटी करना, ग्रुप में काम करना, इट्स नॉट अ वेरी ईजी जॉब. तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. A proper environment is very important. So इससे क्या होता है, it's very necessary that through a coordination proper environment is created, that everybody gives to his full contributions toward the attainment of organization goal. तो क्या होता है, when अगर एक अच्छा coordination रहा in everyone, सबके बीच कोऑपरेट करे एक दूसरे को, और इससे क्या होता है, एक ग्रुप गोल अचीव करने में ईजी होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिससे एक ग्रुप गोल अचीव करने में इजी होता है. तो क्या हुआ, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैटर करता है इंपॉर्टेंस में. अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्केल्स बड़े होंगे, वहाँ के प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा होगा. और वर्कर्स जितने ज़्यादा होंगे, जितने पीपल्स होंगे, उनके डिफरेंट थॉट्स होंगे, डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे, और सबको कोऑर्डिनेट करके म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके काम करना पड़ेगा, एक ग्रुप एक्टिविटी क्रिएट करना पड़ेगा. That is why size of the organization also matter in coordination. Okay, so second topic is functional differentiation. इसमें क्या होता है, there may be a clash of interest. There may be a clash of interest among the various department of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी सबका जो इंटरेस्ट है वो सेम ना हो, सबका वे ऑफ थिंकिंग, सबका काम करने का तरीका सेम ना हो. सच सिचुएशंस बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक. तो इसमें क्या होता है, जो ग्रुप गोल होता है इसमें अचीव करने में प्रॉब्लम होता है. अगर ए और बी का जो इंटरेस्ट है वो सेम ना हो. सपोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स, ए एंड बी.
बोथ हैव डिफरेंट वे टू वर्क। ओके, दोनों का जो वे है और दोनों का जो इंटरेस्ट है वो क्रैश कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो हार्म होगा। सो इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन सच सिचुएशंस बिकम अ वेरी हेक्टिक टू अचीव दी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स। फर्स्ट क्या है, पीपल में जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जब बहुत सारे वर्कर्स हो जाते हैं, बहुत सारे पीपल्स हो जाते हैं, तो उन लोगों में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है ताकि जो ग्रुप गोल है वो इजीली अचीव हो पाए। सो द थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। इट्स मीन सिंपल है कि किसी भी चीज़ में कोई भी डिपार्टमेंट्स या कोई भी काम पे स्पेशल होना, एक्सपर्ट होना, उसका मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। तो इसमें बोला जा रहा है कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अपिल द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन वन मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इंटू वेरियस सब एक्टिविटीज़। सपोज प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट हुआ और सेल्स, बेटर टू टेक सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, सेल्स एक डिपार्टमेंट है तो इसका जो एक्सपर्ट जो स्पेशल है उसको डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये इसके स्पेशलिस्ट है किसके, सेल्स डिपार्टमेंट के। सो नाउ ए हैज़ हिज ओन वर्किंग, लाइक द वे ऑफ वर्किंग, ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ वर्किंग। बी का भी सेम अलग तरीका है काम करने का, सी का भी अलग है। वी कैन कॉल them sub activities. Okay, so each of this are allotted different person and who are required to work total work and to be performed. तो इन्हें क्या होता है, अपना जो दिया गया काम है उसको टोटल परफॉर्म करना होता है। मे बी दे हैव डिफरेंट वेज टू वर्क, ओके, बट जो काम है उन लोग को टोटल वर्क करना होता है। तो ऐसा सिचुएशन में इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय वेरियस पीपल सक्सेसफुली, जितने भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी दिया गया, अलॉटेड किया गया है, उसको सही से करने के लिए कोऑर्डिनेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस it is only upon the establishment of coordinations that everyone complete his or her own works on keep time in view total work to be performed. तो इसमें क्या होता है कि ए और बी के काम पे मतलब कुछ इंटरप्ट ना करे, बी सी के काम पे इंटरप्ट ना करे, वो अपने काम पे ध्यान दे, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे। तो यही है स्पेशलाइजेशन, कि जो जिसमें स्पेशल है वो काम को सही से करो, इसमें कोई इंटरप्ट ना करे और वो दूसरे को डिपार्टमेंट्स को कोऑपरेट भी करे। दिस इज नॉन एज स्पेशलाइजेशन। सो इंटरडिपेंड ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, दिस इज द लास्ट पॉइंट of this chapter and this is the last topic of this chapter. That's mean we had complete the fourth chapter, that is coordination. Okay, so interdependency of different process. तो इसमें क्या इंटरडिपेंडेंस मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपेंड रहना एक से एक दूसरे में। तो जो वेरियस यूनिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसमें वो एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन और परचेज के साथ डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, सो इंटरडिपेंड दैट्स हाईलाइट द इंटरडिपेंडेंसी अमंग द यूनिट्स इज अ ग्रेट नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। सही है। तो क्या हुआ अगेन, सेल्स, परचेज एंड प्रोडक्शन, ये तीनों आपस में दे आर इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स, परचेस नहीं होगा, परचेस चाहिए, फिर प्रोडक्शन चाहिए, फिर सेल्स चाहिए। तो ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट, जब तक एक काम नहीं होता तब तक दूसरा काम नहीं हो पाएगा। सिमिलर इट्स नॉट, कोऑर्डिनेशन इज हाईली needed for the organization. So this is known as interdependency of different process. So this is the last chapter, last point. In next chapter we will read principle of management. Thank you.